This Hello guys, I'm conference audible. will now be recorded. I'm audible. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Okay, guys. So now Yes, we sir. have started the session of SQL and SQL and SQL database. And the scenario is we have create first of all is one resource group. Second, I'm create one network security group, and inside the network security group allow protocols. So this is my NSG network security group and allow protocols. So I'm just allow all traffic. And now I'm also create one energy के बाद I'm just create one VNet like this is my VNet one, or inside the VNet I'm create two subnets like this is a subnet 1 and now this is a subnet 2. So now I'm just give the name is subnet 1 and now the subnet 2, and I'm just attach the network security group with the subnet 1. और गाइस जो मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया मैंने उसको किसके साथ अटैच करा है सबनेट 1. और now I'm create one virtual machines and now I'm attach this virtual machine of with subnet 1. What is the output? Everyone, क्या आउटपुट आएगा मेरा? अमित जो एनर्जी अमित से अलाउ विजेंद्र किया हुआ। अभी रुक जाइए विजेंद्र अभी अमित व्हाट इज द आउटपुट? या विजेंद्र बताइए क्या आउटपुट आएगा? सर वर्चुअल मशीन पर वो पॉलिसी काम करेगी जो हम एनर्जी पे अलाउ करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे दे. सारा That ट्रैफिक। means if I'm attached any virtual machine with subnet 2 there's a no any protocol is allowed. Got it? Everything is denied. यस Got it, Sarvinder, Vijender? यस सर। Now, after that, I'm just create one SQL server and create one SQL database. So there are the two types of SQL server. One is compute less और another is compute. Like कि अगर आप ऑन प्रेमाइस में होते हैं तो आप क्या करते हैं वर्चुअल मशीन पर भी अपना एसक्यूएल सर्वर बना सकते हो, और आइदर कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी खुद डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर की कंप्यूट लेस एसक्यूएल सर्वर भी दिया हुआ है. So now I'm just create a SQL server कि एक प्रोसेस है कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई उसके ऊपर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करा, तो जो कि हम ऑन प्रेमाइस के अंदर करते हैं. बट अजूरे कहता है कि चॉइस इज योर कि आप या तो कंप्यूट लेस एसक्यूएल सर्वर बना लीजिए, दैट मींस कि आपको कोई वीएम की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर क्रिएट कर सकते हो. तो एवरीथिंग मैनेज बाय दी अजूरे, या आइदर कि आप अपने अकॉर्डिंग एक कंप्यूट लीजिए और देन यू क्रिएट अ एसक्यूएल सर्वर. सेम एज दिस इज माय एसक्यूएल डेटाबेस and now I'm connect this SQL database with SQL server.
But guys, you remember if you can create of this types of scenario like a SQL server or SQL DB, क्या आपकी VM SQL database को एक्सेस कर सकती है? Everyone, विजेंदर, क्या दोबारा वर्चुअल बोलना मशीन सर एक बार। क्या वर्चुअल मशीन SQL सर्वर को एक्सेस कर पाएगी? अगर एनएसजी के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी होगी तो Yeah, हाँ so कर there's the पाएगी वैसे तो। by default there's a no any connections. हाँ So कभी भी आप SQL सर्वर या डेटाबेस बनाओगे so there's a no any LAN or WAN access with the SQL server or database. ठीक है। तो SQL सर्वर बनाने के बाद आपको SQL के फायरवॉल रूल्स अलग से बनाने पड़ेंगे। ठीक है। गॉट माय पॉइंट? SQL के फायरवॉल रूल्स अलग से आपको बनाने पड़ेंगे कि आप क्या चीज अलाउ करना चाहते हो, यानी कि कौन से आईपी को वो सर्विस एलोकेट करना चाहते हो। So this is a scenario. So first I'm create a one resource group in a last class on previous जो कि हमारी complete नहीं हो पाई थी. So I'm already create a one resource group with the name of SQL SG. Secondly, I'm create a one network security group NSG. So I'm just search in NSG network security group and then create a network security group. And select the subscriptions and select a SQL database, resource group and give the network security group name is like if I'm talking about like SQL hyphen NSG NSG and give the East US and review and create, or inside the NSG I'm create inbound rules for anywhere. Or either custom rule, you can select the custom rule also. So when it's done, then I'm create VNets, or inside the VNet I'm create a two. So this is SQL server inside the SQL inbound security group, and then click add, and I'm just the any source or any destination star TCP protocol, any protocol, either TCP or UDP. The priority is 100 and I'm like all traffic allowed. सर अगर एनी सोर्स कर रखा है हमने, सोर्स में एनी कर रखा है ना, तो फिर हम सबनेट 1 टू सबनेट 2 अगर पेयरिंग कर देते हैं तो हो गया, फिर वो हमारा काम सब कुछ वहां पे हो जाएगा, सबनेट 2 से भी सबनेट 1 से कहीं से। बट वाया उसके जाएगा ना, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स के अकॉर्डिंग है ना, वो डिपेंड्स करता है कि आप किसके साथ किसके, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, अभी हमने सबनेट के साथ अटैच नहीं करा है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अच्छा। जिस सबनेट्स पे अटैच करेंगे उस पे अलाउड होगा। गॉट इट? तो पेयरिंग से नहीं होगा। यस। समझ गए ना? यू कैन सी यहाँ पे डायग्राम देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में हमने एनी मतलब प्रोटोकॉल्स अलाउ करे हैं, अब किस जी। सबनेट पे करने हैं वो चीज हमें बाद में डिसाइड करनी कि लाइक आपकी कंपनी में 10 नेटवर्क हैं, तो आप सारे नेटवर्क को थोड़े ना देना चाहते हो, स्पेसिफिक नेटवर्क को देना चाहते हो, स्पेसिफिक आईपी को देना चाहते हो। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। डायग्राम समझ रहे हो ना? जी। Now, so all traffic is allowed. Now I'm just create a virtual network. So I'm just click and then go to the virtual network and click on a create, and then as you go, and now the select the source group and like SQL hyphen VNet 1 and next, and I'm just create IP is it 192.168.1.0/24, and add the two subnets is like SUB subnet 1 for SQL access and
192.168.1.0/25 or 26. I'm going to 25, and now I'm create one more 6 like subnet 2. I'm just give the SU subnet 2 for like HR department. So there's a no need for the HR to SQL access. So like 192.168.1.128/25, and now add, and now review and create. After that, I'm just attach. So now I'm just create a energy, allow protocols. Now create a one VNet, create a two subnets. Then now I'm attach this network security group with the subnet 1. After that, I'm create a one virtual machines. Machine. Yeah. So how to attach subnet? How to attach NSG network security group with subnet? I'm just go to the VNet and then go to the subnet. So just wait. So this is SQL VNet 1, and then go to the subnets, and there's the two subnets are available. We can provide the full access of protocol for this subnet 1, and now the select the network security group and then save. After that, I'm just create a one virtual machines. Click home and then create a one virtual machines. I'm just click and then click on a virtual machines and like create VMs. And give the name is like Vijinder -SQL developer. Suppose this is a Vijinder is a working for this SQL developer, and Vijinder location is like a central US, or either I'm just select a security group East US, and I'm just give the no infrastructure. Now the Vijinder using the Windows 10. So now I'm just click on the Windows 10, and the username is ICCP and the password is. तो गाइस आप इसको अपना चाहे and now I'm just none. I'm put the none because I'm already attached the network security group with ये this, and कौन now से पोर्ट just होते हैं सर? इनबाउंड वाले ये हम कहाँ पे हैं अभी? ये अलाउड नहीं करती वर्चुअल ऑलरेडी मशीन के। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड रूल ही तो बनाया था। यहाँ से कोई रूल नहीं लगता किसी भी मशीन पे? अगर आप एनर्जी नहीं है तो आप यहाँ से लगा सकते हो ना। नाउ दिस इज एसक्यूएल सर्वर, सो आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस सबनेट। देखिए मैंने यहाँ पे सबनेट कर लिया, देखो सिंपल सा है ना। मैंने अगर यहाँ पर मैंने इसलिए प्रोटोकॉल नहीं करे कि मैं इस मशीन को इस वीएम के साथ अटैच कर रहा हूँ सबनेट के साथ, इस सबनेट के साथ ये मैंने एनर्जी अटैच करा है, तो ये सारे रूल अप्लाई हो गए ना। इसको ये रास्ता मिल गया ना ऐसे बाहर जाने का। हाँ, गॉट इट? ये रेड लाइन समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन शायद सबनेट ड्रॉप कर दिया। ठीक है, anyway कंटिन्यू। now so I'm just go to and I'm just select the सबनेट 1 SQL एक्सेस। so इसी पर्टिकुलर सबनेट पे करा था। अगर मैं सबनेट 2 पे करूंगा तो मेरा कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई कस्टमाइज प्रोटोकॉल्स भी अलाउड नहीं करे और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी नहीं है। so there's no any access on subnet 1 or either 2, and like just click review and create. And now click. So approximately cost is 5,000 rupees on a month.
and click on create. After that, I'm just create access this systems. एक्सेस कर रहे हो सर वीएम? अभी बनने तो दो. Guys, I'm just download the one software. This software name is SSMS. So I'm just go to the Google and download SSMS. SSMS. So download SQL Management Studio. अच्छा. And now I'm just download the SQL Management Studio. Just click on free SQL download SSMS. I'm just download this software. Is approximately 600 MB, 650 MB. ओहो, ये तो टाइम लेगा. कोई नहीं, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में. ज्यादा पर टाइम नहीं कनेक्ट है सर लगेगा. ये? ऑफिस में हूँ. वेरी गुड. डोंट वरी, स्पीड काफी अच्छी है मेरे पास. Now guys, I'm just go to resource and you can see कि यहाँ पर मैंने ये एक सर्वर बना दिया है और ये मेरी वर्चुअल मशीन बन के रेडी हो चुकी है. So now guys, as per the diagram you can see that this part is done. ये वाला पार्ट मेरा completely डन हो चुका है. जी. इसको बॉर्डर कर देता हूँ पर्पल. Green. Now I'm just start for this option. Got it? So now or after that then we have connect this both part. उसके बाद हम फिर ये दोनों पार्ट को कनेक्ट करेंगे. So now I'm just create a one SQL server because there's when you create a SQL there's a no any access for SQL server. अगर आप SQL server SQL database बनाते हैं तो by default the all traffic is denied. कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. So जब आप SQL server बनाएंगे तो वहां पे आपसे सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आप इसका एक्सेस किस किस नेटवर्क को एलोकेट करना चाहते हो. So now how to create a SQL? So I'm just create a SQL server. So guys always remember कि आपका SQL database तभी बनेगा जब आपका SQL server होगा because the SQL database always attached with SQL server. So पहले आपको SQL server बनाना है then SQL database बनाना है. So I'm just click on SQL server and then create. And this is the Azure subscriptions and give the server name is I'm just type the like ICCP Infotech. And in East US जो भी आपका SQL पे लॉगिन होने का प्रोसेस है तो हम ले लेते हैं use SQL authentication and admin users I'm just create a admin with the admin and the password is admin so ये नहीं लेगा. I'm just put the username is ICCP and the password is ASD@1234. So guys always remember कि the A is the capital ASD@1234. So I'm सर put ये the ऑथेंटिकेशन SQL मेथड में ऑथेंटिकेशन जब SQL की कनेक्टिविटी कराएंगे ना जब हम विंडो 10 पे यानी कि आप अगर अपने सिस्टम पे जब डेटाबेस एक्सेस करोगे तो तब आपको ये सर्वर का ऑथेंटिकेशन है. ओके. गॉट इट? की लाइक आप अपनी विंडो 10 से अपनी जीमेल की अकाउंट करते हो तो जीमेल का आईडी और पासवर्ड तो होना चाहिए ना. अगर सेकंड वाला क्लिक कर देते हैं तो इसके लिए हमें एडी बनाना कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ना. बिल्कुल, वो अजूरे यूजर अजूरे के उस पे जाएगा और थर्ड वाला दोनों के लिए चला जाएगा. रिव्यू एंड क्रिएट. and click create. After that I'm just create a SQL database. But guys always remember कि मैंने आपको बताया कि आपका जब तक SQL सर्वर नहीं होगा आपका SQL डेटाबेस नहीं आएगा. सो
चॉइस इज योर कि आप या तो पहले एसक्यूएल सर्वर क्रिएट कर लीजिए या ड्यूरिंग डेटाबेस क्रिएट करते वक्त भी आप अपना एसक्यूएल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, जब तक मेरा एसक्यूएल सर्वर बन रहा है, नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद वीएम। मैंने जो वर्चुअल मशीन्स बनाए थे, आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस पर्टिकुलर वीएम। Okay. The copy the public IP and then go to the remote desktop. Paste the public IP, then click on connect. And username is ICCP and the password is कैपिटल लेटर। नहीं, वो कैपिटल लेटर जो है ए कैपिटल है, वो डेटाबेस का है। इट्स नॉट अ डेटाबेस। ये मैं अभी वर्चुअल मशीन लॉगिन कर रहा हूँ, इस मशीन के अंदर से जाके डेटाबेस एक्सेस होगा। ये विंडो 10 है ना, हाँ, ये तो वर्चुअल मशीन है ना। जो अब गाइस, यू नो कि सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करने लगाया था? नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर तो मैंने अपनी फिजिकल मशीन पे करा है डाउनलोड। किसी लिए किया डाउनलोड? गाइस, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम अपने एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। So now I'm just copy this software in virtual machine and install the software. Like अगर आपको वर्ड की फाइल बनानी है तो MS ऑफिस तो इंस्टॉल करोगे ही ना। जी। तो वही है कि मैंने पहले MS ऑफिस डाउनलोड करा और अब मैं उसको विंडोज 10 पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। सेम एज कि मेरे को अगर एसक्यूएल करना है तो SSMS के थ्रू आप एसक्यूएल सर्वर एक्सेस करोगे। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। तो मैंने डायरेक्ट वहां पे ना करके मैंने अपनी मशीन पे इसको डाउनलोड कर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पेस्ट करके देन आई एम इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली क्या है, मेरी फिजिकल मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं अपनी फिजिकल मशीन पे भी एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा। और अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, अपनी मशीन पे इंस्टॉल करिए, देन एक्सेस। बड़ा टाइम ले रहा है, मैं सीधा इसी पे इंटरनेट चला लेता हूँ, इससे बढ़िया तो। I'm just go to Google. तो गाइस, ये जो सेटअप है, ये क्लाउड की मशीन है मेरी। तो ये क्लाउड की मशीन पे भी आप चाहो तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आई एम जस्ट क्लिक, और ये आपका इस मशीन पर देखिए क्लाउड पे कितनी फास्ट स्पीड है। अप्रोक्सीमेटली 20 सेकंड्स के अंदर मेरा 600 MB का डेटा डाउनलोड हो गया। गॉट इट एवरीवन? ये क्लाउड की मशीन है, इट डन बिल्कुल 20 बिल्कुल, यही सेकंड मैं में। देख रहा था। क्या चीज? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत तो सुपर आप, फास्ट चलता है ना। तो ये क्लाउड पे मैंने इसको डाउनलोड करा है। तो डायरेक्ट है कि अब मैं अगर क्लाउड की मशीन पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मेरा नेटवर्क यूज नहीं कर रहा है, अब ये अजूरे डेटा सेंटर का हाँ। इंटरनेट यूज कर रहा है। जी 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 जी। मैं जो कंसोल ले रहा हूँ मेरा सिर्फ नेटवर्क उसी पे है। सो नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। ये मैं अच्छे कह रहा था आपको, अगर आपको उसी पे इंस्टॉल करनी है तो क्लाउड से डाउनलोड करना। तो सी ड्राइव के अंदर हो रहा है गाइस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो ये सॉफ्टवेयर मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसी के थ्रू ही मैं अपना डेटाबेस एक्सेस कर सकता हूँ। So this is a Microsoft SQL Server Management Studio with Azure Data Studio. And now it's start for installation. So हम इसको चलने देते हैं guys. तो अभी हो जाएगा ये, क्योंकि क्लाउड पे है तो काफी जल्दी इंस्टॉल होगा।
So just a wait. Got it the concept? विजेंद्र सर्वेंद्र क्लियर है अभी तक का कॉन्सेप्ट? यस सर। मतलब वीएम भी वर्चुअल है और सारे एसक्यूएल सर्वर भी वर्चुअल है, स्टोरेज भी हमारी वर्चुअल है। और आपने बोला कि आप अपनी लोकल मशीन से भी कर सकते हो। मैं अभी वो भी कराऊंगा आपको, डोंट वरी, वो भी मैं बनवा दूंगा। बट अभी वो वीएम आप बनाओगे तो उसके अंदर ये इनबिल्ड आएगा, ये जो एसक्यूएल आ रहा है ना, ये इनबिल्ड आएगा उसके अंदर। तो अगर आप इनबिल्ड चाहते हो तो आप अपनी क्या करिए, अब इस मशीन की एएमआई क्रिएट करके रख लीजिए, इमेज बना के रख लीजिए। अब आप उस इमेज के थ्रू बनाओगे तो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको, तो वो हो जाएगा आपका विद एसक्यूएल, विंडो 10 विद एसक्यूएल। याद है हमने इमेजेस बनाई थी? हाँ, कैप्चर कर लेंगे। तो अब उस कैप्चर इमेज के थ्रू जब हम बनाएंगे तो इनबिल्ड एसक्यूएल आ जाएगा ना हमारे पास, तो मैं हर मशीन पे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मैं अपनी कस्टम इमेज का यूज करना लग जाऊं तो। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। सर बस ये नहीं मेरे को समझ आया, ये पैच अपडेट वाला जो है ना, क्लाउड की मशीन्स पे पैच जो आते हैं वो कैसे आते हैं, वो कब आते हैं, बैकएंड में होते हैं, कैसे वो करता है? बैकएंड में फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन अपने आप करता है माइक्रोसॉफ्ट। अपने आप करता है ना, उसमें मशीन रुकती नहीं है कभी भी? नहीं, अगर आप स्टॉप कर दोगे तो नहीं होंगे, ऑन होते वो बैकएंड में अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। वो तो डोमेन की पॉलिसी लगेगी ना, अगर हम अपने डोमेन में हम चाहे डब्ल्यूसूस वगैरह से करना चाहें, डब्ल्यूसूस की जरूरत ही नहीं है बल्कि हमें यहाँ जरूरत है ही नहीं ना यार, तो लाइव है ना, कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट पे ही आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट भी तो उसी हिसाब से अपडेट देगा ना, अननेसेसरी पैकेजेस नहीं देगा वो। अब एक्चुअली जब भी हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन की प्रॉपर्टीज में जाना है। क्या करेगा प्रॉपर्टी में जाके? रैम 3.5 GB है इसकी, बट यू कैन सी द जियोन प्रोसेसर, जियोन प्रोसेसर है, सर्वर मदरबोर्ड है। आप इस कॉस्ट को सर्च करिए। कॉमन पूल वाला है ना सर? पूल वाला उठा रहा है ना ये? क्या पूल वाला नहीं है, ये जियोन देखिए जियोन प्रोसेसर है। इसकी कॉस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जिस सर्वर पे ये मशीन चल रही है उस सर्वर की कॉस्ट क्या है। सो यू कैन सी, क्या जस्ट गो टू द गूगल, जियोन कॉस्ट ऑफ जियोन अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज, 2,37,000 और 5 लाख। तो नहीं ये क्या क्या चीज चल रही है इस पे? ये सीपीयू है खाली, यानी कि जिस सिस्टम पर ये वर्चुअल मशीन बनी है ना, जिस सर्वर पे, हाँ, उस सर्वर का सीपीयू ये है। यानी कि जो सर्वर बैकएंड में अजूरे ने लगाया हुआ है ना, उसका सीपीयू की कॉस्ट ही इतनी है। ये तो वैसे वर्चुअल मशीन है ना सर? वर्चुअल मशीन तो फिजिकल सर्वर पे ही है ना, तो वो हाँ, फिजिकली वो तो हार्डवेयर फिजिकल सर्वर पे तो बहुत सी बनी हुई है ना मशीन तो वहां पे। अरे भाई बनी हुई है, अब उस पे चाहे 20 बने, लेकिन उस सर्वर की वो बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, नहीं ये बहुत महंगा है, ये प्रोसेसर बहुत महंगे यूज किए हैं, तभी तो ये बहुत सही चलते हैं। ठीक है, नाउ सो यू कैन सी गाइस कि मेरा ये एसएसएमएस सेटअप इज कंप्लीट, तो मेरा इस पे स्टार्ट हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट कि अब आप देखिए कि मेरा एसक्यूएल सर्वर भी क्रिएट हो चुका है, और मैं जिस सर्वर पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि जिस सर्वर से एसक्यूएल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर आप अपने सर्वर को एक्सेस भी करना चाहते हैं, तो यू कैन सी कि अब आप एक्सेस करना चाहते हैं, सो दिस इज एडमिन, तो एडमिन यूजर नेम इज ICCP। तो यहाँ पे ये आपका एसक्यूएल डेटाबेस आ रहा है पूरा का पूरा। सो नाउ जस्ट वेट कि अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस। तो आप यहाँ से भी क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो, और आइदर you can just go to this option and click on a SQL database. So now you can just click on SQL database and then click on create.
So guys, अब I'm start for this process. मैं इस वाले प्रोसेस को यूज कर रहा हूँ. Now I'm just create a SQL DB and now attach this DB with SQL Server, or after that I'm just access this SQL Server on this particular virtual machine. Got it the process? Everyone? एक बार दोबारा बताना सर. The process is this कि मैं अब डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, और इस हाँ. डेटाबेस को जब मैं क्रिएट करूंगा तो डेटाबेस को मैं SQL सर्वर से अटैच करूंगा. Got it? ठीक है. और अब मेरे को अगर इस डेटाबेस के अंदर कुछ काम करना है, कोई डेटा स्टोर करना है, टेबल या रो व्हाटएवर कुछ भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे तो हाँ. एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मैंने कंप्यूट लेस सर्विस यूज करी है. गॉट ओके. इट? तो इसको एक्सेस मैं कहाँ पे करूंगा? अपनी वीएम पे एक्सेस करूंगा. तो इसको मैं वीएम पे एक्सेस करूंगा तो SSMS के थ्रू करूंगा. गॉट इट द पॉइंट? ओके. बट उससे पहले मेरे को क्या देनी पड़ेगी? इस एसक्यूएल सर्वर को इस वीएम की परमिशन अलाउड करनी पड़ेंगे. अच्छा, रिमोट मैंने के आपको लिए. बताया था नहीं, रिमोट के लिए नहीं. रिमोट तो मैंने ले लिया ना, रिमोट की परमिशन नहीं, एसक्यूएल एक्सेस की परमिशन. मतलब एसक्यूएल सर्वर को बताना पड़ेगा. तो अभी देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा आपको. क्यों ये टेंशन कोई ले रहे हो फीचर भाई? ऑन करना पड़ता है क्या मशीन में? अरे यार बनने तो दे, अभी पता लग जाएगा. वेट, आई एम जस्ट गो टू PSU go SQL SG. Now the database name is like a VIJENDER Vijender-DB. मैं चाह रहा हूँ कि विजेंदर इस पे काम कर रहा है तो विजेंदर के नाम से मैंने डेटाबेस, और देखिए एसक्यूएल सर्वर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. गॉट इट? अच्छा. अब मैं देना चाहता हूं कि डेटाबेस की जो कॉस्ट है ना वो भी मैटर करती है, कि अगर मैं 5th जनरेशन का डेटाबेस और डेटाबेस का जो हार्डवेयर है वो 2 कोर ले रहा हूं और 32 GB स्पेस ले रहा हूं, तो इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा है मेरी. तो देखिए अगर मैं इसकी कॉस्ट लेता हूं तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा अमाउंट आएगा इसका. आई एम यूजिंग कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड में, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्यों नहीं आ रही? कैलकुलेट कर ले भाई, ये कैलकुलेशन 1080 नीचे. या तो ये देखिए 2000 यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ लाइक प्रीमियम, बेसिक. ठीक है ना, प्रीमियम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो यू कैन सी द मंथली कॉस्ट 33,000. सो आई एम 33,000. यूजिंग फॉर प्रीमियम. तो मैं बेसिक बेसिक. ले रहा हूँ गाइस कंप्लीटली, और मैं इसमें आपका 1 GB स्पेस ही ले रहा हूँ. गॉट इट? तो मेरी अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो 359 रुपीज आएगी. पर तो मंथ. आई एम जस्ट या सो आई एम जस्ट क्लिक अप्लाई. तो कहते हैं ना कि आपको ये डेटाबेस सस्ता. साइज कितना चाहिए, यानी कि आप कितना डेटा रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपकी डेटाबेस की कॉस्ट भी आएगी. एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन बैकअप, कि आप जो इसका बैकअप है वो लोकल जोन में बनाना चाहते हो या डिफरेंट मतलब कि विद इन अ लोकेशन, सेम लोकेशन, या मल्टी जोन्स में बनाना चाहते हो या मल्टी रीजन्स में. सो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं ले रहा, यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस नेटवर्किंग. you can see the allow Azure service and resources to access this service. तो by default यहाँ पे क्या हो रखा है? नो. Got it? तो मैं इसको नो ही रहने दे रहा हूँ guys. I'm not allowed anything else. Now the private end, मैं कोई भी सर्विस यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ? अलाउ नहीं कर रहा. Now the next, and not now, I'm just enable the Microsoft Defender, so मैं यूज नहीं कर रहा. And now review and create. हाँ बताइए. एक बार सर वो उसको नेट बताना थोड़ा सा पैक करके. नेटवर्किंग सिक्योरिटी पे क्या था? ये था ना करंट आईपी एड्रेस, और ये यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेस, अभी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट. Their setting is हाँ. display below are read only that can be modified from firewall and virtual network blade. तो मैं अभी यहाँ से कोई भी सेटिंग इनेबल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको सेटिंग्स बनाना चाहता हूँ कि मे बी कि कोई आपका डेटाबेस बना हुआ हो, उस पर आप कैसे अलाउड और डिनाई करोगे. गॉट इट? इसलिए मैं आपको यहाँ से कोई भी सेटिंग नहीं बता रहा हूँ नेटवर्किंग की. तो अगर मैं यहाँ से कोई भी सेटिंग्स नहीं दे रहा हूँ, so that means कि आप अपने डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाओगे.
फिर तो हम जस्ट क्रिएट दिस डेटाबेस, और मैं पहले विदाउट परमिशंस अलाउ करे आपको ये डेटाबेस एक्सेस कराता हूं, सो यू कैन सी कि इट्स गिव यू द एरर। तो देखिए गाइस, एक ये मेरा वर्चुअल मशीन्स है। तो वर्चुअल मशीन्स पे अगर मैं आता हूं और मैं यहाँ पे सर्च करता हूं एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये मेरा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो दिस इज माय वर्चुअल मशीन, और आई एम जस्ट कम टू माय फिजिकल मशीन गाइस, दिस इज माय फिजिकल मशीन। एंड नाउ आई एम आल्सो सर्च, मैंने यहाँ फिजिकल मशीन, यानी कि आपने अपने फिजिकल लैपटॉप पे भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर भी इंस्टॉल करा हुआ है सॉफ्टवेयर ऑलरेडी। तो ये मेरी फिजिकल मशीन है और वो मेरी वर्चुअल मशीन है। तो मैं दोनों जगह आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा एसक्यूएल सर्वर। Now guys, you can see कि the SQL database is ready to use. I'm just go to the SQL database and how to connect. अब आता है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो guys सिंपली है, you can just click on database. Just a minute guys. और either click on SQL server, आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो, choice is yours, दोनों तरफ सेम ही URL आएगा। अरे भाई आजा, wait, server is ISSP. Yeah, so ये मेरा विजेंद्र डीबी आ गया। I'm just click and how to connect or how to access the database. So guys, this is a server name. So this is your server name or your host name. I'm just copy this server name and I'm just go to virtual machine. सबसे पहले मैं virtual machine पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए वो सबसे पहले आपसे पूछा है database engine. So now I'm select a database engine. Server name, I'm just put the server name is this one, and it select the automatically database name. So Vijender SQL /ICCP. तो विजेंद्र एसक्यूएल सर्वर नेम डेवलपर डालते के ही नाम सर से अपने आप आ गया वो। ये अब मेरी वर्चुअल मशीन ही बनी हुई है ना, तो इस पे ऑलरेडी अच्छा ऑटोमेटिकली उसने नाम उठा लिया ना। सर window.net लिखा हुआ है ना, उसमें NET में से कुछ हाँ, डिलीट करके देखना। अरे वो नहीं आएगा भाई, अभी रुक तो जाओ। और मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन नहीं चाह रहा, क्योंकि विंडोज में ये मेरा लोकल यूजर नेम ले रहा है, मेरे को चाहिए एसक्यूएल जी ऑथेंटिकेशन। ओके गॉट इट एवरीवन? मुझे डेटाबेस पे लॉगिन होना है ना, तो इसने लोकल अपनी मशीन का ले रखा है। विजेंद्र सर्विंदर, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। अब मेरा क्या है, जब मैंने एसक्यूएल सर्वर बनाया था तो यूजर नेम डाला था आईसीसीपी और पासवर्ड डाला था कैपिटल AHD@1234, अगर यू रिमेंबर। एंड नाउ क्लिक कनेक्ट। तो देखिए इट्स गिव यू द एरर, ये आपका अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। सेम है, क्योंकि देखिए ये तो मेरी क्लाउड रिसोर्स है ना, बट वहां पे भी क्लाउड रिसोर्स पे भी मैंने नो कर रखा था। ये मशीन तो मेरी अजूरे क्लाउड पर ही बनी हुई है ना, ये फिर भी जी एक्सेस नहीं कर पा रहा। नाउ सेम है इसकी, देखिए ये मेरी फिजिकल मशीन है और मैं अपनी फिजिकल मशीन पे अगर इसको एक्सेस करता हूं, तो अभी इसको ओपन होने तो बाद में मैं करता हूं। सो परमिशन गाइज मैं दे देता हूं, हाउ टू अलाउ। तो गाइज अगर आपको डेटाबेस की परमिशन देनी है तो यू कैन जस्ट गो टू द सेट सर्वर फायरवॉल। यू कैन जस्ट क्लिक सेट सर्वर फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क्स, जो आपकी जो वीएम है वो आपके वर्चुअल नेटवर्क पे कनेक्ट है। तो ऐड एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क, select the virtual network. So नेम ऑफ द लाइका मैं दे देता हूं, लाइका VIJENDER विजेंदर VNet वर्चुअल नेटवर्क, या VN कर देता हूं। Pay as you go, और नाउ द
वेट एक मिनट यार, ये मेरा फिजिकल मशीन का एसक्यूएल ओपन हुआ है। आई एम जस्ट कम टू हियर। एंड दिस इज अ एसक्यूएल वीनेट 1 जिस नाम से मैंने बनाया था। एंड यहाँ पे देखिए मैंने एक सबनेट बनाया था, सबनेट 1 एसक्यूएल एक्सेस। तो गाइस मैंने क्या करा, एंड देन इनेबल। अब मैंने क्या करा है कि यहाँ पर एसक्यूएल के फायरवॉल में आके मैंने क्या कर दिया है, पर्टिकुलर इस नेटवर्क को अलाउ कर दिया है। सबनेट 1 को या द फील्ड अपडेट व्यू रूल सर्वर ऐसे व्हाट हैपन, हुआ क्यों नहीं है। SQL DB, then go to first on SQL DB, then go to set SQL and attach existing virtual network, new virtual network like SQL VNet 1, like the subnet 1, and now click OK. तो गाइस जो मैंने सबनेट बनाया था ना अपना, उसी सबनेट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन तो उसी सबनेट पे कनेक्ट है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो एसक्यूएल डेटाबेस बनाया है, इसी एसक्यूएल डेटाबेस पर, लाइक आई एम फर्स्ट रिमूव इट, इसी एसक्यूएल डेटाबेस को मैं क्या कर रहा हूँ, इस एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर मैं सबनेट 1 को इस एसक्यूएल डेटाबेस के फायरवॉल में ऐड कर रहा हूँ। तो जब ये एसक्यूएल हो जाएंगे तो वीएम भी इसी सबनेट पे आ गई और एसक्यूएल डेटाबेस भी इसी सबनेट पे आ गया। तो वीएम इस एसक्यूएल को एक्सेस कर सकती है या नहीं कर सकती? सर एनएसजी का क्या रोल रहा फिर? या एनएसजी का मतलब है जो वीएम का कंसोल आ रहा है वो एनएसजी से आ रहा है। और जब ये सबनेट आ गया तो एनएसजी में भी एसक्यूएल सर्वर अलाउड है। तो ये डेटाबेस का पैकेट भी तो यहीं से जाएगा ना। ये इंटरनल लैन कम्युनिकेशन हो गया आपका, यहाँ से यहाँ ये आपका लैन कम्युनिकेशन बन गया पूरा का पूरा। एनएसजी का मतलब है कि ये जो मैंने एक्सेस कर रखी है ये एनएसजी के थ्रू एक्सेस हो रही है वर्चुअल मशीन। समझ गए? अगर आरडीपी अलाउड नहीं करोगे तो ये क्या एक्सेस हो जाएगी, वर्चुअल मशीन का कंसोल एक्सेस होगा। भाई तुम्हें घर से बाहर जाना है तो अलग गेट है, और घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो अलग रास्ता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि टेरेस पे जाने के लिए बाहर वाले गेट का क्या रूल है। सरविंदर? हाँ जी सर। क्लियर है। समझ गए? यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बॉस ये आपकी एक वर्चुअल मशीन है, मतलब कि ये एक बिल्डिंग है। अबे यार बिल्डिंग बना के दिखानी पड़ेगी तुम्हें। ये एक अबे भाई आजा, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ये है राकेश, ये डेटाबेस है, और ये सर्वे विजेंद्र की मशीन है, और ये है बाहर जाने का रास्ता इस बिल्डिंग से। अब मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, मैंने ये कनेक्ट कर दिया डेटाबेस और विजेंद्र की मशीन को। बट इस ये तो मशीन पॉसिबल को है। कनेक्ट करने के लिए मुझे एक्सेस करनी है, तो ये एक्सेस तो तभी होगी जब मैं बाहर से जाके इसका आरडीपी लूंगा, मतलब इस मशीन का कंसोल होगा तभी तो मैं कनेक्टिविटी कर पाऊंगा। ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू एक्सेस हो रहा है। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट कि मैंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर वीनेट 1 को ऐड करा दिया, और अब देखिए अब मैं अगर यहाँ पे ओके करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और डेटाबेस के अंदर जाके देखिए विजेंद्र डीबी आ गया, और मुझे नया बनाना है तो मैं राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, और एक और नया, अब मैं और डेटाबेसेस बनाना चाहता हूं तो यहीं से बैठ के कर सकता हूं। सपोज विजेंद्र इज द एडमिन ऑफ डेटाबेस, एसक्यूएल एडमिन है ये, तो मुझे अब और भी नए डेटाबेस बनाने हैं तो मैं यहीं से बना सकता हूं। तो ये जो डेटाबेसेस अब यहाँ से क्रिएट होंगे ये क्लाउड के पोर्टल पर ही क्रिएट होंगे।
I'm just create like a SARVINDER Sarvinder -DB. मैंने एक डेटाबेस बनाया, देन क्लिक ओके कर दिया। तो ये जो डेटाबेस बनाया ये मैंने कहां पर बैठ के बनाया है, वीएम पे या क्लाउड के पोर्टल पे? सरविंदर कहां पे बनाया है ये डेटाबेस? कहां पर बैठ के बना रहा हूँ? वीएम पर बना रहा हूँ ना? हाँ सर, वीएम हाँ पर। बट मेरा डेटाबेस तो किससे कनेक्ट है? क्लाउड से। जी। तो ये डेटाबेस कहां पर बनना चाहिए? यहां से मैंने एक कमांड दी है, बट ये एग्जीक्यूट कहां पर करेगा? क्लाउड पे, सर्वर। क्लाउड के पोर्टल पे। सर्वर के थ्रू ही तो डेटाबेस पे जा रहे हैं। डेटाबेस पे हम डायरेक्ट थोड़ी ना जा रहे हैं, हमने जा तो सर्वर यस के सर। थ्रू ही रहे हैं। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट कि देखिए ये मेरी फिजिकल मशीन है, मैं इस फिजिकल मशीन से भी अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना तो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इट गिव मी द एरर लाइक ICCP एंड द पासवर्ड इज AHD@1234। आई थिंक सो भी जाए। भाई साइन इन वाला एरर, नहीं, एरर नहीं आएगा। कनेक्टिविटी इशू। नहीं आएगा, हो जानी चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो गाइस देखिए अगेन गिव यू द एरर बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो कि मैंने पब्लिक नेटवर्क अलाउड करा था, प्राइवेट नेटवर्क, और ये मेरी मशीन लैंड पर है या वैन पर है? फिजिकल मशीन ये क्लाउड रिसोर्स है या मेरी अपनी रिसोर्स है? वैन पर है ये तो सर। वैन पर है। सो मेरे को अगर इस मशीन पे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? आई एम चेक माई पब्लिक IP। So I'm just go to Google or type my IP. So guys, this is my IP. I'm just copy this IP and go to Microsoft Azure Firewall and give the name is like my laptop and give the IP. ये मेरा IP हो गया and then save. अब मैंने यहाँ पे अपने IP को भी ऐड करा दिया। पहले मैंने इस नेटवर्क को दिया तो SQL सिर्फ इस नेटवर्क पे एक्सेस होगा। अब मैंने कस्टम सेटिंग में एक और IP दे दिया। सो आपका इसका मतलब क्या है कि अब मैं इस सिस्टम पर भी इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूं। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक, ये तो मेरी देखिए वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन पे सर्विंदर नाम का DB बन गया। आई एम जस्ट मिनिमाइज और दिस इज माय फिजिकल मशीन जो भी एरर दे रहा था। नाउ क्लिक कनेक्ट और इस बार देखना अब ये मशीन एक्सेसिबल हो जाएगी। This is a way you can how to create a virtual machines or how to connectivity, how to connect SQL server with virtual machine or either physical machines. And one more thing you can see कि जो मैंने डेटाबेस बनाया था वो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखेगा। सो मैंने यहाँ पे पोर्टल से विजेंदर बनाया था और एक सर्विंदर नाम का भी बना लिया। सर गिव मी द अगेन एरर, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ दिस वर्चुअल मशीन? सॉरी यार मेरे को ये चेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये सर्वर URL चेंज नहीं करा था, इट्स गिव द एरर। सो आई एम जस्ट go to Vijender or I'm just copy or either I'm just go to Sarvinder also. तो मैं इस वाली मशीन पे सर्विंदर का एक्सेस कर लेता हूँ। तो देखिए इसका भी URL यही है, सर्वर नेम यही है ICCP Infotech डेटाबेस। और आइदर अगर आप देखेंगे अपना दूसरा डेटाबेस तो दूसरे वाले डेटाबेस विजेंद्र सर्विंदर वाला उसका भी सेम ही URL है ICCP Infotech database.windows.net। और अगर आप देखेंगे SQL सर्वर पे जाके तो SQL सर्वर का भी URL यही है। तो ये इसने अभी URL दिया नहीं है, पूरा ICCP SQL.net है। तो आई एम जस्ट गो टू एनी, मैं किसी भी डेटाबेस के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई एम जस्ट गो टू सर्विंदर, मैं सर्विंदर के डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन पे विजेंदर के डेटाबेस को एक्सेस कर रखा है। तो आई एम जस्ट कॉपी एंड देन this is my virtual machine, where is my physical machine?
and paste and then connect. और गाइस देखिए यहाँ पर ये भी मेरा एक्सेसिबल हो गया। तो देखिए an update to SQL Server Management Studio is available एंड देखिए यहाँ पे भी दोनों सर्वेंद्र और विजेंद्र आए बिकॉज क्योंकि सर्वेंद्र और विजेंद्र बोथ डेटाबेसेस आर कनेक्टेड विद द सेम सर्वर। क्लियर एवरीवन गाइस? अब आपको टेबल्स बनानी है या वटेवर जो भी डेवलपर को काम करना है वो पर्टिकुलर विजेंद्र के उस पे जा रहा है और नाउ यहाँ पे जाके अगर उसको टेबल क्रिएट करनी है इट जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू टेबल, जो भी अपने अकॉर्डिंग उसको कनेक्टिव जो भी अपनी टेबल्स वगैरह बनानी है वो यहाँ पे बना सकता है। तो जो भी आपको इसके अंदर डेटाबेस के अंदर काम करना है वो आप अपनी कोडिंग यहाँ पे कर सकते हो। Hope so guys, is it clear this point? Everyone, any question related to this? Guys, please reply. Sarvinder, Vijender, is it clear? सर इसमें जैसे जो है सर्वर आपने क्रिएट किया था एसक्यूएल सर्वर, तो बेसिकली क्या है, पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें एजोर में क्या है, सीधा क्रिएट होता है सर्वर ना? हाँ तो कंप्यूट लेस हो गया ना। देखो दोनों ऑप्शंस हैं यार, आप या तो वीएम बनाइए और वीएम के ऊपर एसक्यूएल इंस्टॉल कर लीजिए, या वही है यार जैसे हम या तो ऐप सर्विस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कर लीजिए या अपनी वर्चुअल मशीन पे कर लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि या तो आप अपना वर्चुअल मशीन के थ्रू कर लीजिए या आप अपने उसके थ्रू कर लीजिए। डायरेक्ट आप कंप्यूट लेस यानी कि कंप्यूट का मतलब है कि आप इसका यूज कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर ना भाई। देखिए दोनों ऑप्शन है यार, या तो आप पीजी में रह लो या अपना घर बना लो। आप रेंट पे भी रह सकते हो और अपना घर भी बना सकते हो। तो रेंट पे रहना है तो दैट मीन्स वहां पे सारी चीज मिलेगी आपको, आपको सिर्फ पैसा पे करना और यूज करिए। और आप अपना घर बनाएंगे तो यू नो वेरी वेल। राकेश, सर्विंदर, विजेंदर, गॉट इन माय पॉइंट? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों Yes. को? क्लियर है गाइस? Yes, sir. So thank you guys and any